मॉडर्न हिस्ट्री के घटना चक्र को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। चलिए इसको पहले मैं रीड कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। मुर्शिद कुली खां was the last governor of Bengal who was independently appointed by the Mughal king। ठीक है, मुर्शिद कुली खां shifted his capital to Muqsudabad from Dhaka and named it Murshidabad। He started Izari system in the land settlement। Alivardi Khan 1742-1756 comparing European with the honeybee said that if they are left undisturbed they will give you honey, and if try to disturb them they will bite you till death। After the death of Alivardi Khan, his grandson Siraj-ud-Daulah succeeded to the throne of Bengal, and Black Hole tragedy took place during his reign on 20th June 1756। ठीक है, according to one of the 23 survivor J.Z. Holwell, 146 English prisoners were put in a cell with a dimension of 18 feet length and 14 feet 10 inch in width। 123 of them died due to suffocation and only 23 survived। This incident is known as Black Hole tragedy। Okay. Contemporary Muslim historian Ghulam Hussain in his book Siyar-ul-Muqtarin has not mentioned this incident। Robert Clive is known as the founder of the English Europe Empire in India, who defeated the force of Bengal of Nawab Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey, presently known as Plassey, on 23rd June 1757 AD, and soon the seed of British rule in India। Okay. Battlefield Plassey is situated on the bank of Bhagirathi River in Nadia district of West Bengal। Okay. Robert Clive was the governor in 1758 to 1760 AD and 1765 to 1767 AD in India। During this period, he signed Allahabad Treaty with Nawab of Awadh Siraj-ud-Daulah। During this governorship, white mutiny broke out among English soldiers. Plundering of resources of Bengal by British companies was started during the Clive governorship। Mir Qasim 1760 to 1763 AD was the ablest among the successor of Alivardi Khan as a Faujdar of Purnia and Rangpur। Mir Qasim had already proven his ability to save his countries from the repeated conspiracies by the Britishers and to avoid interference from the Englishmen. Mir Qasim shifted his capital to Munger from Murshidabad so as to stay away from the Calcutta। He consolidated his army using the European method। He made agreement in Munger for the manufacturing of Matcott gun। Mir Qasim also took some brave steps so as to improve the economic condition in Bengal। The officers involved in embezzlement were fined heavily. Some new taxes were introduced। The combined force of Mir Qasim, Siraj-ud-Daulah, Nawab of Awadh, and the Mughal king Shah Alam II were defeated by the Britishers in the Battle of Buxar
on 22 या 23 October 1764. Okay. English army was led by the Hector Munro. Henry Vansittart was then governor of the Bengal. His victory of the British made the English a great power in northern India and the contenders for supremacy over the whole country. Now there was no one in India would challenge the British. The area of Allahabad was now under the British, and and the door of Delhi was now open for the British. Battle of Buxar changed the course of Indian history. During this battle, Mir Jafar was the Nawab of Bengal and Delhi was ruled by the Salam Drutiye. Second, Salam second. By the Treaty of Allahabad, August 1765, Shah Alam second agreed to reside at Allahabad under the company's protection. Nawab of Nawab Sirajuddaulah surrendered Allahabad and the Kara to Empire of Shah Alam II, and Shah Alam II issued a decrees granted Diwani of Bengal, Bihar, and Orissa to the East India Company. Robert Clive became the governor of Bengal and started dual government system in Bengal. ओके, ये इम्पोर्टेंट है. डुअल सिस्टम गवर्नमेंट स्टार्ट करता है, दीवानी राइट तो खुद लेता है. ठीक है. द कंपनी अपॉइंटेड टू डिप्टी दीवान्स मोहम्मद रजा खां and for Bengal and Raja Sitab Rai for Bihar to exercise Diwani function during during the time of Salam II. In 1803, Delhi fell completely to Britisher. Salam II and his two successors Akbar II 1806 to 1837 AD and Bahadur Shah II 1837 to 1857 AD were mere prisoner of the East India Company. The Britisher came to South in 1765 after acquiring the Diwani of Bengal. After the War of Burma, David Scott tried to contact Sylhet through road to Jantia and Garo Hills area, but faced a very thought resistance from the Khasi tribes who lived in these areas. Khasi Khasi tribes who lived in these areas under the leadership of Tiroit Singh. K.M. Panikkar said that 1765 to 1772 the company made Bengal a state of dacoits. Okay, this is all of the theory parts where important points to be mentioned. Now we move to the question parts. चलिए क्वेश्चन करते हैं. अब हम सब पढ़ लिए. तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम सबका? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के जो मुगल एम्पायर था वो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल किसे अपॉइंट किया था? तो वो था हमारा था मुर्शिद कुली खां, जो हम सभी पढ़े हैं. ठीक है, बी नंबर. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल who was appointed by the Mughal Empire. This is also a मुर्शिद कुली खां. एक सेकेंड, कैसे? So मुर्शिद कुली खां. Okay. Third question. Which of the following war began the consolidation of British supremacy over India? ब्रिटिश सुपरमेसी को एस्टैब्लिश कौन सा बैटल करता है? तो वो बैटल ऑफ पलासी करता है. किधर गया? देखिए यहाँ है आंसर, बैटल ऑफ पलासी. ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होगा. ठीक है. द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाय.
जो बैटल ऑफ प्लासी होता है उसमें मिलिट्री का यूज नहीं होता है, उसमें कॉन्स्पिरेसी का यूज होता है, ठीक है। तो उससे हम सब मिलिट्री सक्सेस नहीं बोलेंगे। लेकिन बैटल ऑफ जो बक्सर होता है उसमें मिलिट्री सक्सेस होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर दे रखा है प्लासी, हालांकि प्लासी में मिलिट्री का यूज किया नहीं गया था, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर 1757, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव इन द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following has been called as a heaven born general, heaven born general किसको बोला जाता है, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन द भागीरथी रिवर ऑफ वेस्ट बंगाल, उस वक्त का वेस्ट बंगाल था, ठीक है। आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, मुंगेर कौन शिफ्ट किया था अपना कैपिटल, तो वो था मीर कासिम, ये ब्रिटिशर से दूर जाना चाहता था, तो मीर कासिम था, ठीक है। आ जाइए 11th क्वेश्चन, द मोस्ट डिसाइसिव बैटल दैट लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वॉज, डिसाइसिव बैटल कौन था, मोस्ट डिसाइसिव बैटल, तो वो था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, तो बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy in India, Battle of Buxar. Who was the ruler of Delhi at the time of Battle of Buxar? Battle of Buxar के समय रूलर कौन था दिल्ली का, तो वो था शाह आलम सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, Who was the Nawab of Bengal when the बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट, कौन था, मीर कासिम तो लड़ा था, लेकिन नवाब कौन था, मीर जाफर था, ठीक है, बक्सर के बैटल के वक्त। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दो ट्रीटी इलाहाबाद का साइन होता है अगस्त में, एक 14 अगस्त है, एक शायद 18 अगस्त है, ठीक है, 1765 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा रूलर दीवानी राइट दे देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो है ये शाह आलम सेकेंड। हु ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1765, 1765 में दीवानी राइट मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कौन देता है, मुगल एम्पायर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वॉज ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाई एम्पायर शाह आलम, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, द हेवन बॉर्न जनरल। 20, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, Emperor Shah Alam II gave the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa to English East India Company on, तो वो है 12 अगस्त 1765, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया ना इससे, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद
बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। मुर्शिदाबाद के लिए किसे डिप्टी दीवान नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां। और राजा सिताब राय हैं वो बिहार के लिए हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग mountains tribe did the British first come to contact with after the grant of Diwani in ईयर 1765? तो वो था खासी। अभी तुरंत हम सब पढ़े थे, खासी के साथ कंप्लीट हुआ था गारो हिल्स के आसपास वाले एरिया में। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है जयंतिया एंड गारो हिल्स एरिया, है ना। चलिए, with reference to the Hindu Nawab Wazir of Awadh Sultanate, which of the following statement are correct? Raja Sitab Rai was अर्थ मंत्री of Nawab of Asafdollah. Usually there were certain Hindu castes who were placed at the high position in the state of Nawab of Awadh. ठीक है, तो ये दोनों सही है ऑप्शन। बोथ ए एंड टू आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following is correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? 18th century में कौन सा बैटल लड़ा गया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो बैटल ऑफ वांडीवास है, बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ अंबर है, बैटल ऑफ प्लासी है। ठीक है, तो सबसे पहले जाना है हम सबको नहीं, इस सब में से देखा जाए तो सबसे पहले जो होता है बैटल ऑफ अंबर होता है, जो आपका 17 कितने में होता है वो, 1749 के आसपास होता है। ठीक है, 1749 में बैटल ऑफ अंबर होता है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होगा 1757 में। फिर 1760 में आपका बैटल ऑफ वांडीवास होगा। ठीक है, उसके बाद 64 में हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, आ जाइए, बी नंबर होगा क्वेश्चन। देखिए हाँ, बी नंबर आंसर है बैटल ऑफ अंबर ऑफ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवास और बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, याद रखिएगा। एक दो बार पढ़िएगा तो खुद याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी वेयर इज द क्वेश्चन 25। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760। ठीक है, बोल रहा है कौन सा फ्रेंच कमांडर था जो बैटल ऑफ वांडीवास में डिफीट हो गया था। ठीक था, वो लाली था, काउंट लाली और इसके बीच में हुआ था, क्या नाम था, नाम अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। एक ब्रिटिशर था, एक लाली और एक और था ब्रिटिशर, उसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास। ये सेकंड कर्नाटिक वॉर के आसपास का समय है। ठीक है, इन द बैटल ऑफ वांडीवास ब्रिटिश डिफीट फ्रेंच। ठीक है, ब्रिटिश ने हरा दिया था फ्रेंच का, कौन सा है वो, सी नंबर है। चलिए, द फेमस बैटल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, द फेमस बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760 वॉज फॉट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। किसके खिलाफ लड़ा था ब्रिटिश? तो वो फ्रेंच के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं हम सब। बैटल ऑफ बक्सर किससे रिलेटेड है बताइए इसमें से। ये मीर जाफर वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव नहीं, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, डलहौजी वर्सेस मार्थास नहीं, निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी ये है आपका। ये सॉरी, ये मैच नहीं करना है, बोल रहे कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है,
तो बैटल ऑफ बक्सर मैच नहीं है, ठीक है। अरे ये बैटल ऑफ वांडीवॉस ये फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, ये सही है। चिलैन वाला डलहौजी वर्सेस ये भी नहीं है, खुदरा भी नहीं है, खुर्दा। आज ये 29 नंबर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल वाला इलाके से ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया वेगरसली, कौन सा मतलब ब्रिटिश को अपोज करते रहा लगातार, तो वो मराठा था, ठीक है। मराठा से बहुत लंबे समय तक चला इसका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो वो पंजाब और मैसूर पे होगा। ब्रिटिशर जो है सो जो ये एनेक्सेशन का जो वो पॉलिसी था, वो कब्जा जो करते आ रहा था, पहले बंगाल पे करता है, फिर मैसूर पे करता है, फिर मराठा पे करता है, फिर पंजाब पे करता है, और फिर तो थोड़ा बहुत सिख वगैरह था और अवध वगैरह था, वो सब पे कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से उसका चलेगा। तो हम सब अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सब पंजाब और मैसूर को देखेंगे। इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, इसमें तो 29 ही था, इसमें भी कम ही होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए थैंक यू।